Today we are going to start chapter 3 Coordinate Geometry of class 9th Mathematics. In this video we'll learn the concepts of this chapter so that we can do the exercises easily. So let's start. Suppose I say put a dot on a sheet of paper like this and I ask a question, what is the position of the dot on paper? Some of you will say the dot is in the upper half of the paper. Some will say it is near the left edge of the paper and others will say it is near the left hand upper corner of the sheet. But they do not tell the exact position of the dot on the paper. If I say the dot is nearly 5 cm away from the left edge of the paper, left side से वो 5 cm away है, like this, and I give one more information, the dot is at a distance of 9 cm above the bottom line. Bottom line से वो 5 cm 9 cm above है. It will tell us the exact position of the point. अब हमें point की exact position पता चल गई है कि वो 5 cm away है left edge से and bottom line से 9 cm above है. इस बात से हमें क्या conclusion मिला? That we need two independent informations for finding the position of a dot. किसी भी dot की अगर हमें position पता करनी है, हमें दो independent informations required हैं. So to locate the position of an object or a point in a plane, अगर हमें locate करनी है किसी point की या फिर किसी object की position एक plane में, we require two perpendicular lines. उस वाले एग्जाम्पल में भी दो परपेंडिकुलर लाइंस थी, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर 90 डिग्री के एंगल पे थी. वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल थी 5 सेंटीमीटर वाली एंड 9 सेंटीमीटर वाज वर्टिकल. सो विद दिस एग्जाम्पल we'll begin the very important system, that is Cartesian system. Because इस सिस्टम में हमें पॉइंट्स की लोकेशन को ही जज करना है, that's why I have given you an example to make your understanding a little stronger. This is called a Cartesian plane or a coordinate plane or XY plane. These are the different names of this given plane. First thing is the horizontal line is called x-axis. ये जो आपको horizontal line दिख रही है, this is called x-axis. जिधर तरफ positive numbers हैं, it is x, and on negative side it is represented by x dash. Second is the vertical line which is called y-axis. ये vertical line जो present है, ये हमारी y-axis होती है. Again the positive is y and the negative part is called y dash. These lines are called coordinate axis. Axis is a plural of axis. Axis का plural है axis, क्योंकि अगर हम एक की बात करेंगे एक लाइन की, that is called axis. But if we are talking about two or more, we call it axis. So in lines को हम क्या बोलते हैं? Coordinate axis. The coordinate axis divide the plane. This is the entire plane. इस plane को ये coordinate axis 4 parts में divide करती है, which are called quadrants. Like this, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. The point of intersection of axis, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O. The distance of a point from the y-axis is called x coordinate or abscissa. अगर हम कोई पॉइंट मार्क करें इस प्लेन पे like this, if we say the distance of this point from y-axis, y-axis का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? x coordinate या फिर abscissa. राइट, डिस्टेंस सपोज इस पॉइंट का है, हमें यहाँ पे गिवन है 3, इट इज 3, सो दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस से किसी का डिस्टेंस नाप रहे हैं, किसी पॉइंट का कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. डोंट बी कंफ्यूज इन कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, लाइक दिस. ये डिस्टेंस हो गया हमारा 1 2 3 4, सो इट इज 4. इसको हम बोलेंगे
ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट। सो नाउ वी हैव गॉट आवर x कोऑर्डिनेट भी हमें पता चल गया है एंड y कोऑर्डिनेट भी। इफ आई से दैट you have an abscissa of a point is x and ordinate is y, then x y are called the coordinate of a point। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में हम पहले एब्सिसा लिखते हैं एंड देन ऑर्डिनेट। इस केस में ये हमारा पॉइंट है। हाउ विल राइट इट्स कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, 3 4। दिस वाज आवर x coordinate and this will be the y coordinate। So these are called the coordinates of a point, coordinates of a point। Clear? Next thing, the coordinate of a point on x-axis is x0। अगर x-axis पे हमारा कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x0, क्योंकि उसमें कोई डिस्टेंस x से तो होगा ही नहीं, सिर्फ x पे एक पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। सपोज वी हैव अ पॉइंट ऑन x-axis ऑन 3, सो इट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 0। The coordinates of a point on y-axis is 0 y। अगर कोई पॉइंट हमारा y-axis पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0 y होंगे, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y will be the given one। सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है and y कोऑर्डिनेट is -3। So in this way we write the coordinates of a point। Next thing is about origin। origin के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, उसका एब्सिसा भी 0 होगा एंड उसका ऑर्डिनेट भी। नाउ विल टॉक अबाउट क्वाड्रेंट्स। हमने क्वाड्रेंट्स स्टडी करे थे, दैट एक प्लेन पे कोऑर्डिनेट एक्सिस उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, दैट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। अब आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में नॉलेज हो गई है तो हम क्वाड्रेंट्स के साइन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट किस फॉर्म का होता है, प्लस प्लस। व्हाट डज इट मीन्स, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। कोऑर्डिनेट्स में पहले एब्सिसा लिखते हैं और बाद में ऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। सो इसमें हमारा x कोऑर्डिनेट का साइन प्लस का है तो यहाँ फर्स्ट प्लस आ गया एंड y भी हमारा प्लस का है इसलिए सेकेंड भी हमारा प्लस आ गया। नाउ वील सी क्वाड्रेंट 2, उसका होगा माइनस प्लस, बिकॉज पहले हम x देखते हैं, x का हमारा माइनस है इसलिए हमने माइनस लिख दिया और प्लस में हमारा y है सो यहाँ पे प्लस आ गया। क्वाड्रेंट 3 विल बी ऑफ माइनस माइनस, x कोऑर्डिनेट पहले देखे हम तो वो भी सारे नेगेटिव है और y भी हमारे नेगेटिव में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x जो है वो पॉजिटिव है एंड y इज नेगेटिव फॉर्म। सो इन दिस वे we'll be able to know the forms of different quadrants। अगर आपके पास कोई पॉइंट है, सपोज I say 3 minus 4 and I ask you what is in which quadrant it lies, ये कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, आप कैसे जज करेंगे, x कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है एंड y इज नेगेटिव, मींस ये किस फॉर्म का है, प्लस माइनस। और प्लस माइनस कहाँ पे लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो आप कह सकते हैं दिस इज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। इफ आई से अ पॉइंट 3 9, व्हाट आर इट्स साइंस, प्लस प्लस, और प्लस प्लस की फॉर्म हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की है सो यू कैन से इट इज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन माइनस 3 minus 1, it will lie in third quadrant, minus minus form के, so we can write here third। So this type of questions are asked in exams। Next thing is, if I say locate the points 5 0, हमने देखा था कैसे लोकेशन करते हैं ऐसे पॉइंट्स की जिसमें y कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, x एक्सिस पे हम पॉजिटिव वाला देखेंगे क्योंकि प्लस का 5 है सो यहाँ पे लोकेट होगा इन दिस वे। सेकेंड पॉइंट इज 0 5, इसमें हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब y पे लाई करेगा ही और y में हमें पॉजिटिव देखना है सो विल प्लॉट लाइक दिस। थर्ड इज 5 2, मतलब
x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखेंगे, पहले y 5 को देखेंगे एंड देन 2, y का 2 यहाँ पे है और 5 x का यहाँ पे, लाइक दिस। थर्ड इज -3 5, -3 मीन्स x कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव तो इस वाले क्वाड्रेंट में, और y प्लस का है तो इन दिस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा इसका -3 and 5, it will be plotted like this. Then 4 -4 प्लस का x कोऑर्डिनेट एंड माइनस का y कोऑर्डिनेट means fourth quadrant, it will be plotted like this. So if you have any doubt in any of the concept, you can ask your queries in comment section below. From next part, we'll begin with our exercise portion. So don't forget to watch that part also.